السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب کچھ اللہ پاک کرتا ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ میں نے اس دنیا میں بہت ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا سب کچھ ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجز کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر جاتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسی تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب اللہ پاک کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں مجلس بنا رکھا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ انسان پریشان تب ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ اللہ پاک کے پیارو سنو، اگر اللہ پاک کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ لوگوں کے رب سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ رب ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ محبت تو یہ ہے جب رب کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ پاک کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتی ہیں، اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتی ہیں یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہی ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے۔ محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے، خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔
जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए सुकून से नमाज पढ़ा करे। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। कुछ आजमाइश और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि जहमत नहीं बल्कि रहमत का बास थी। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहान में से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। हर तकलीफ अजियत नहीं होती। कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह पाक को बहुत पसंद होती हैं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो के बिना बेकार है। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा देते हैं। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल गई है उसे भूल जाने की आदत। यह आदत इंसान को बहुत सी तकलीफों से जाती है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? वो अगर दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसास बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत न करना। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह पाक तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मखनी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। जिंदगी से जिद करना छोड़ दो। कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। अगर सब यही मिल जाएगा तो अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाएगा? जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने जर्फ में बसत लहजे में नरमी और तबीयत में इंकस ना पैदा कर पाया हो। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह पाक से दिल की बात करते हैं और वो पहले से सब कुछ जानता है मगर फिर भी हमारी बात सुनना चाहता है। तौबा के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं, तौबा तो बजाते खुद एक इबादत है। जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा होता है। गुनाह हर उस अमल का नाम है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। दुआ के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बुराई दुआ पर से एतमान उठा देती है, और जो दुआ के करीब नहीं जा सकता वो रब के करीब नहीं जा सकता। बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामयाबी बेहतर है। हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसान से समझौता नहीं करते। अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तिदा है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामयाबी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो, अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहां नहीं जा सकती, वो जहां से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर जिंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। हम ख्याल लोग हम सफर हो जाएं तो मंजिल आसान हो जाती है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज का फायदा ना हो। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देती हैं। यह जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में होगी और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ।
जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। रब के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। जो इंसान यह समझता है कि अल्लाह पाक जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को बर्बाद करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात न बने तो फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। न देर से मिलता है और न ही जल्दी, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक मिलता है, और बेशुमार मिलता है जब तुम अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाते हो। रिश्ते और ताल्लुकात निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बने। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसास बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत न करे। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ कर देती हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेती हैं। मांगी हुई तवज्जो की जो आपको तकलीफ देती हो, फिर चाहे बाहर का मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप उनमें रहने के वास्ते खुद को थका रहे हैं। सवाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझ लेना बेहतर होता है। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। खुलूस और इज्जत बहुत नायाब तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इंसान जब अपनी ख्वाहिश और जरूरियत महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आती। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अपनी मसरूफियत का जायजा लो, क्योंकि आपकी मसरूफियत गुमराही भी हो सकती है और आपकी मसरूफियत इबादत भी हो सकती है। अल्लाह पाक से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। अगर अपना घर अपने सुकून का वास ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं यकीन से निकलता है। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा रुजू करता है। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए हैं लेकिन उसे दिल का रास्ता नहीं मिला। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ आ रही है तो यह दर्जा आपकी बुलंदी के लिए नफरत वाले दिल में अल्लाह पाक नहीं आ सकता। अल्लाह पाक कब राजी होता है? जब आप एक दूसरे को राजी रखें। गम ना करो, कोई भी चीज किसी दूसरी सूरत में भी वापस मिल जाती है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नुम वो बाद में बनता है। हसद इंसान को उस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है।
है। गम और परेशानियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है वो अपने बंदे के लिए वसीला बना ही देता है। जब अर्श वाले की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की तमाम सांसें बेकार हो जाती हैं। दुनिया की खूबसूरत हकीकत आंखों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। जिस तरह हम अपने में आई हुई चीजों के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसके इख्तियार में हम हैं वो हमारे लिए करता है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना होता है। कुछ बातों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ हकीकत वक्त से पहले आकार हो जाए तो शायद अपनी कीमत खो दे। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी होती है, उनकी असलियत एक वक्त के बाद पता चलती है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह पाक पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो उन तमाम दुआओं पर कुन कहेगा जो हमें नामुमकिन नजर आती हैं। आपके जन्मज़ब अल्फाज किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। अल्लाह पाक से अपना रिश्ता इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ना रहे। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा। इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। अखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को अखलाक नहीं बल्कि फन कहते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है, नजरिए का नहीं। हीरे जवाहरात हासिल करने से कहीं बेहतर है कि इंसान खुद अपने अंदर उन जैसी सिफात पैदा कर ले। जिंदगी में दो चीजें याद रखें, जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हो तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नुम से बचाकर जन्नत तक ले जाए। अल्लाह पाक हमें जहन्नुम की आग से बचा, आमीन सुम्मा आमीन। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल कहते हैं, जबकि काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। अल्लाह पाक के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं बल्कि तजद का फर्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तक नहीं होता। जिंदगी हर जानदार को दी जाती है, मगर बामकसद जिंदगी सिर्फ इंसान को दी गई, और वो मकसद ही उसे बाकी मखलूक से अलग और बेहतर बनाता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह पाक को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, यह मत सोचो कब देगा, जब देगा, बेहिसाब देगा। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो, हो सकता है तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। जिंदगी की असल खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो तीन चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी को तकलीफ नहीं देता। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दे उन्हें सोचना छोड़ दो। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी खैर मौजूदगी में करे। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच ले कि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर खत्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफर है। जुबान वो हथियार है जिसको इंसान
इंसान गुस्से में इस्तेमाल करने से मजबूत रिश्तों में दरारें डाल देता है। अपना गम सोच समझ कर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुमको यकीन हो अल्लाह पाक पर तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो। वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती है। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआ पर कुन फरमाएगा। यह देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रिज्क अल्लाह पाक के पास है तो तुम रिज्क तलाश न करो, बल्कि अल्लाह पाक को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज्क है। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से एक पैगाम होता है कि अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में हो तो दिल की हिफाजत करती है। जो लोग आपके काबिल नहीं उन्हें आपसे दूर रखती है। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह पाक देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह न समझना कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचना कि उसको तुम पर कितना एतबार था। बेजुबान से भी हमदर्दी करना न भूलो। यह बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। हजरत अली ने फरमाया, उस चीज का गम न करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत जाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह पाक वही मोहब्बत आपको सही जरिए वापस लौटा देगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अल्लाह पाक कभी तो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर देती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। तरबियत का फर्क होता है, वरना जो शख्स सुन सकता है वो सुना भी सकता है। माफिया तो गलतियों की होती है, अजियतों का तो मकाफत अमल होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हारा सब इंतजार करें, और जहाँ तुम पहुंचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा रह जाता है, और जब अल्लाह पाक की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी इंसान बआसानी सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआ को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। जब तुम खुद नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तब अल्लाह पाक तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच ले आता है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते हो तो उम्मीदों से नफरत करते हो और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ न होते। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से न निकले। जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदकिस्मती है। तुम्हारी नहीं इज्जत उतनी ही दो जितनी के लोग कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है।
जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हो। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा न करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई न करो, तकलीफ में सब्र से काम लो क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। कामयाब होने का एक आसान तरीका यह है कि हम उन नसीहत पर खुद अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हों। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। एक एह जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियां बस फासला एक सांस का है। जो चल रही तो एह जहां, जो रुक गई तो वो जहां। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामयाबी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। जो जितना आगा है उतना ही जिम्मेदार है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इंसान के तमाम गम और परेशानियां उसकी नाजायज ख्वाहिशों की वजह से आती हैं। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह पाक के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मुसीबत का नाजिल होना हलाक के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए होता है। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है जिसका अंदाजा कयामत के रोज होगा। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बेहतर हैं। जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है इसमें कुछ बाकी न रहेगा, माल या औलाद सब फना हो जाएगा। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा कल उससे महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। अल्लाह पाक उन चीजों को सख्त नापसंद करता है। ऊंची आंखें, झूठी जबान, वो दिल जो बुरे मंसूबे बनाए, वो गवाह जो झूठ बोले, वो बंदा जो भाइयों के दरमियान झगड़े लगाए, वो पांव जो जल्दी बुराई की जानिब दौड़े, वो हाथ जो बेगुनाह को नुकसान पहुंचाएं। दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, औरत का इम्तिहान गुर्बत में होता है, दिल का इम्तिहान इश्क में होता है, आंख का इम्तिहान बाजार में होता है, इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है बहुत ज्यादा बर्दाश्त करके और बहुत ज्यादा सब्र करके और बहुत सारी बातें नजरअंदाज करके। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देती हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बहुत बेहतर हैं। अल्लाह पाक दुख भरी दास्तां को बड़े ध्यान से सुनता, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है, लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाए तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी कुछ ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है मगर हम उसका हिसाब रखते हैं। जो न मिल सका, हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर बाकी दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की आप भी उनकी परवाह न करें। मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें नई मंजिलें आपके मुंतजिर हैं। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। खुद को अल्लाह पाक की रजा के सामने ऐसे ढाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। लोगों का भला जरूर करे लेकिन उनसे यह उम्मीद न रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह पाक जरूर करेगा। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह पाक रोने वाले को। कभी
आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है, जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है। बेशक वही रब परेशानियों के बाद खुशियां भी देगा। जब इंसान अपने रब पर उस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह पाक भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाएगा। लोग जितना भी दिल दुखाएं, याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह पाक सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्त से गुजरी हैं, और अल्लाह पाक वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जाता, माफ करना और इंसाफ करना। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है, और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब अल्लाह पाक कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसके काम का जिम्मा अल्लाह पाक खुद लेना चाहता है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे, ना झगड़े तवील होने दे, माफ कर दी, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इतनी तो कोशिश जरूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बना देता है और कदर करना हीरो से मिलवा देता है। मसरूफ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को, और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं, पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को, और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज जिंदगी है, दो मुख्तलिफ अंजाम है। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तलक रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये जिंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि इस कायनात का रब है। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज्यादा नहीं हैं जितने तन सवाल दिल दुखाने वाले। तबक अगर सिर्फ जुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकाली कम हो जाएगी, और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। दिली खूबसूरती, आला किरदार, अच्छे अखलाक, अंदरूनी पहचान, ये सारी बातें सिर्फ किताबी तौर पर मानी जाती हैं। असल में इंसान हर शख्स को बाहरी खूबसूरती, बनावट, रंग, रुतबा, कद, माली हैसियत, फायदा नुकसान, अमीरी गरीबी देखकर ही अपनी राय बना चुका होता है। माजी को कोसने से पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर यही है कि अपनी गलतियों से सबक लिया जाए और अपना मुस्तकबिल बेहतरीन बनाया जाए। आदमी की हैसियत उसके अलावा क्या है कि वो अपनी उम्र के सफर पर रवा दबा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना यह सफर करता जा रहा है। हर गुजरते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। आसमानों में मकबूल और कबूलियत के जाब्ते अलग होते हैं। अक्सर जमीन वालों के सताए हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। मोमिन को माल की नहीं, आमाल की, नफ्स की नहीं, रूह की, दुनिया की नहीं, आखिरत की फिक्र रहती है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजीज से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। वो तकलीफ भी रहमत है जो दिल पर गुजरे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह पाक से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता, कि अल्लाह पाक अपने बंदे को काफी नहीं। रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है।
अल्लाह पाक पर यकीन अंधेरों में भी होता है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में यह भी आता है कि जो लोग बाजे हों आपको गलत समझने पर उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कसी इख्तियार कर ली जाए। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। 7 समंदरों की तह में बसने वाली मखलूक को भी देखने वाला, पत्थर के अंदर रहने वाली मखलूक को पालने वाला, हर मुब्तला गम को राहतों में अता करने वाला आपका दिल नहीं देखेगा। हर आंख से गिरने वाला आंसू, हर होंठ से निकलने वाली सिसकी, जहन की आखिरी सोच, दिल का पहला ख्याल वो जानता है। उससे कहा जाए वो सुनने का मुंतजिर रहता है। हर मंजर बदल देगा क्योंकि वो आपका रब है और जो रब है वही सब है। नेक लोग फूलों की तरह होते हैं, जो भी उनके करीब होता है वो उसे खुशबू से मतर कर देते हैं। इंसान की सोहबत से उसकी पहचान होती है, इसलिए नेक लोगों में बैठने को कहा गया है और नेक लोगों का असर कभी ना कभी हो ही जाता है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। जिंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल हो। तो बस अपने तारीख दिन की सुबह का इंतजार करें और उस वक्त को रो धो के जाया ना करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी शक न करो कि अल्लाह पाक क्या कर सकता है। अल्लाह पाक पलक झपकने से पहले चीजों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। वो अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा करना है और सब्र करना है। सूर यूसुफ हमें सिखाती है कि बीमार सेहत याब हो जाती हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। बस तुम अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखो और सब्र का दामन थामे रखो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश है। इंसान अल्लाह किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ रब के खौफ से। तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीखो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उन बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह पाक ही है जिसको हम जवाबदेह होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को गौर मत करो। बस अल्लाह पाक से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह पाक तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। अल्लाह पाक किसी से नाराज भी हो जाए तो उसका रिज़्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता उसे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जब अल्लाह पाक से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है। सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जब रिज़्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज की लालच नहीं होती। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिससे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं और जिससे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझ लो तो उसे बोल ले दो। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। एक जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी।
सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, यह तो खुशबू की तरह होती हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाती हैं। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से रब मिलता है। सजदे की ताकत यह है कि फर्ज की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। वजू से शकल, कुरान से अकल और नमाज से पाक होती है। तौबा का दरवाजा खुला है, उससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। जिनका भरोसा अल्लाह पाक हो उनकी मंजिल कामयाबी है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिद मुबाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।